Hi everyone, I am Karthik Mesurya. Last time we got some knowledge of units and how to convert them into higher units or lower units and solve some question number 2, 3 and 4. So let's continue our exercise 2.5 with question number 5. Let us see what is question number 5. So write the following decimal numbers in the expanded form. Now they given us some decimal numbers and we have to write them in an expanded form. So if we want to solve that, we have knowledge of place value. So from this table we get some idea. So if we have the number 253.147, then if we want to write in expanded form, we can write it like, first of all, what is the place value of 3, 5 and 2? It was 3 is 1's place, 5 at a 10's place and 2 is at a 100's place. And then 1, 4, 7. So 1 at a place of 10's, 4 at a place of 100's and 7 at a place of 1000's. So we have to multiply that numbers by their place values. Suppose we have 3, so 3 multiply with 1's, 5 multiply with 10's and 2 multiply with 100's. Then after 1 multiply with 1 by 10, right? 4 multiply with 1 by 100 and 7 multiply with 1 upon 1000. Okay, so we can write like that: 2 into 100 plus 5 into 10 plus 3 into 1 plus 4 into 1 upon 10 plus 1 into 1 upon 100 plus 7 into 1 upon 1000. Same way we can solve this exercise. So we have 20.03. So what is the place value of 0? It is a 1's. So 0 multiply with, we can write from left side. So 2 into 10, क्योंकि इसकी प्लेस क्या है 10's. So 2 into 10 plus 0 की वैल्यू क्या होगी 1's. So 0 into 1 plus 0 at a place of 10's. So 0 multiply with 1 upon 10's plus 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100's. So 3 into 1 upon 100. ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही रखना है. सो 2.03. तो हमारे पास 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1's. सो 2 इंटू 1 प्लस 0 की वैल्यू क्या है 10's. सो 0 मल्टीप्लाई विथ 1 अपन 10's प्लस 3 की वैल्यू क्या है 100's. सो 3 इंटू 1 अपन 100. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का पार्ट जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा और प्लेस वैल्यू की डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड वाला पार्ट है वो डिवाइड में है, होगा मल्टीप्लाई, लेकिन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड जो भी होगा वो 1 अपन होगा. तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो गया. सो वी हैव 200.03. So 2 at a place of hundreds. So 2 into hundreds plus 0 into 10 plus 0 into 1 plus 0 into 1 upon 10 plus 3 into 1 upon 100. Okay. Now 2.034. 2 into 1 plus 0 into 1 upon 10 plus 3 into 1 upon 100 plus 4 into 1 upon 1000. सिर्फ प्लेस वैल्यू चेक करनी है और उसको मल्टीप्लाई करके
एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। जो भी नंबर होगा वो इस तरह से ऊपर वाले जो नंबर लिखे हैं, 10th होगा तो 1/10 से डिवाइड होगा, 100 होगा तो 1/100 से डिवाइड होगा, 1000 होगा तो 1/1000 से डिवाइड होगा। अगर 1 से 10 से 100 से तो वो उस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो वी कैन राइट देयर एक्सपांडेड फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिए हमें, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है ये हमें सिर्फ बतानी है। सो 2.56, वेयर इज द 2 हियर, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज वंस। नेक्स्ट 21.37, so where is 2 here, so 2 at a place of tens. Now 10.25, place of 2 in this decimal number is tens. 9.42, 2 is at a place of hundreds. Now 63.352, so place of 2 in this decimal number is at thousands. ओके, तो सिर्फ हमें प्लेस वैल्यू यहाँ पे बतानी थी, बहुत इजी है। दोनों एक्सरसाइज एकदम इजी है, वी कैन सॉल्व इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी. Ayub went from place A to place D and then from there place C. So D is 9.3 km from A and C is 11.8 km from D. Who traveled more and by how much? तो यहाँ पे दिनेश ने प्लेस A से प्लेस C तक ट्रैवल किया है, राइट। सो सबसे पहले उसने A से प्लेस B तक ट्रैवल किया और B से C तक ट्रैवल किया। तो ये जो बी प्लेस है, प्लेस बी इज 7.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम प्लेस ए। नाउ प्लेस सी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, राइट। नाउ अयूब ट्रैवल ए टू सी वाया प्लेस डी। सो अयूब ने यहाँ से ट्रैवल किया ए टू डी एंड डी से सी। सो प्लेस डी जो है वो प्लेस ए से 9.3 किलोमीटर दूर है और प्लेस सी जो है वो प्लेस डी से 11.8 किलोमीटर दूर है। तो सबसे ज़्यादा किसने ट्रैवल किया, अयूब ने या दिनेश ने, और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया ये हमें फाइंड करना है। सो प्लेस ए टू बी इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर एंड प्लेस बी टू सी इज इक्वल टू 12.7 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिनेश, यानी दिनेश का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल है ये हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो ए बी प्लस बी सी करेंगे यहाँ पे टोटल, राइट। तो 7.5 प्लस 12.7 किलोमीटर। नाउ 7.5 प्लस 12.7 किलोमीटर, 7 इंटू 5 2 12, सो 2 का 2 12 का 2 यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा, 7 1 8 8 प्लस 2 10 0 1 1 प्लस 1 2, यानी कि टोटल ट्रैवलिंग कितना होगा 20.2 किलोमीटर। दिनेश ने कितना ट्रैवल किया टोटल 20.2 किलोमीटर। नाउ अयूब ने कितना ट्रैवल किया ये हम फाइंड करेंगे। ए डी इज इक्वल टू 9.3 किलोमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 11.8 किलोमीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अयूब इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। So 9.3 plus 11.8 किलोमीटर इज इक्वल टू 21.1 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पे 8 प्लस 3 11, 11 का 1 यहाँ पे जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 1 1 1 प्लस 1 2, 21.1 किलोमीटर। अभी दिनेश का और अयूब का किसका ज़्यादा है ट्रैवलिंग। So comparing both values we see 21.1 is greater than 20.2, यानी कि 21.1 किलोमीटर जो है, जो कि अयूब का डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो दिनेश से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है ये फाइंड करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे, राइट। सो 21.1 माइनस 20.2 किलोमीटर, सो वी गेट 0.09 किलोमीटर।
sorry 0.9 kilometer. Okay. Now question number 8. Syama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Sarla bought 4 kg 100 gram orange and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? श्याम ने यहाँ पे कितना खरीदा है? 5 किलो और 300 ग्राम एप्पल खरीदे और 3 किलो और 250 ग्राम मैंगो खरीदे। अभी सरला ने कितना खरीदा? 4 केजी और 800 ग्राम ऑरेंज और 4 केजी और 150 ग्राम बनानास। ओके, सो फर्स्ट श्यामा बॉथ एप्पल्स। श्यामा ने कितने एप्पल्स खरीदे? 5 केजी 300 ग्राम। नाउ श्यामा बॉथ मैंगोज 3 केजी इन 250 ग्राम। और टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा, यानी टोटल कितना खरीदा उसने ये देखेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 केजी 300 ग्राम प्लस 3 केजी 250 ग्राम। सो ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। 1 केजी इज इक्वल टू 100 ग्राम। सो 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है, तो छोटे में से बड़ा बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो 5 केजी में ऑलरेडी है, 300 ग्राम है तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी 3 केजी में है ऑलरेडी, 250 ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ वी गेट 5 प्लस 0.300 kg प्लस 3 प्लस 0.250 kg, right? So if we add that 5.300 kg plus 3.250 kg. Now total fruits bought by Syama is equal to 8.550 kg, right? Now Sarla bought orange is equal to 4 kg 800 grams. Sarla bought banana is equal to 4 kg 150 gram. Now total fruits bought by Sarla is equal to, we have to add orange and banana. So 4 plus 800 divide by 1000 प्लस 4 प्लस 150 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये जो ग्राम को है उसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 4 प्लस इसका आंसर क्या आएगा? 0.800 एंड इसका आंसर क्या आएगा? 4 प्लस 0.150, राइट। सो 4 प्लस 0.800 इट मीन्स 4.800 kg प्लस 4 plus 0.150 kg is equal to 4.150 kg, right? Now add both of these, we get 8.950 kilograms. So we can say that 8.950 kg is greater than 8.550 kg, right? So सरला bought more fruits. Okay, सरला ने सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खरीदा है। So now homework time. How much less is 28 किलोमीटर than 42.6 किलोमीटर? यानी कि 42.6 से 28 किलोमीटर कितना कम है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें सिर्फ 42.6 किलोमीटर में से 28 को माइनस करना है, तो ये हमें मिल जाएगा कि वो कितना कम है। और यहाँ पे हमें इस 3 नंबर दिए हैं उसको सिर्फ हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही। ओके, सो थैंक यू।